Good morning, Jai Hind. In this video, I will explain the rest part of the chapter, the structural change. What we have studied earlier, we have to continue what we left. So what is the next topic? Urbanization and industrialization. In this, the first is the tea plantation. Tea grown in hilly areas and requires rain, hence Assam was ideal for tea plantation. Disadvantage of Assam, low population, therefore people had to be moved from Bihar, Maharashtra, Rajasthan and Madhya Pradesh. Life of laborers, harsh weather condition caused diseases, moved away from hence culture, shock, living and working condition were poor, low wages, these are the shortcomings, low wages. Penal laws made by the British to punish the offender or workers if they did not report on time, tried to run away or went against them, but their law were in favor of the plantation owners. Industry was privately and publicly owned. जब भी कोई भी कानून जब बनता है तो बड़े लोगों को ध्यान में रख के देखा ही बनता है, वर्करों को सपोर्ट करने वाला कानून नहीं बनता. तो ब्रिटिशर्स ने भी जो लॉ बनाए उनके लिए ट्री फॉर्मेशन जो होता था तो वो ऑनर्स को ध्यान में रख के बनाए, लेबरर को ध्यान में रख के नहीं बनाया. इंडस्ट्री वॉज प्राइवेटली एंड पब्लिकली owned. Either plantation owners or planters, and management was done by employee managers. Had a luxurious life and large bungalows with gardens which were maintained by laborers. Industrialization and urbanization in independent India. Nehru and minister felt a drain of wealth as Britishers left us in a difficult position. Had to recognize the economy and led to develop industries. Nehru called dams the temples of modern India as they provide employment, control floods and hydroelectricity. Urban-rural area impact. People move from rural to urban area in search of job, better standard of living, sense of anonymity, migration. First thing what happened? Social reason, sense of anonymity. Anonymity means लोग कोई जानेगा नहीं, कोई आपका नाम, कोई आपकी ज़ात नहीं पूछेगा. Ability to choose one's own job, economic reason, better job opportunities, standard of living, classes between immigrants and residents, where immigrants move to urban area, the residents resist this because they feel that they have to show housing facilities, job opportunities. Metropolis cities, suburbs because part of city, Chennai, Bangalore, suburb areas had to reach because they were far away. Megapolis, suburbs of city because part of the city and also belong to other states. NCR, Delhi, Gurugram, Faridabad, Ghaziabad, Noida, Bombay, Calcutta, megapolis, metropolis. These things are the very important things that affect the society, give the impact of us. जैसा कि आपने इसमें देखा कि ब्रिटिश रूल जो थे, उनके जो रूल्स उन्होंने किस तरह के बनाए थे कि जो भी देर से पहुंचता था काम पे उसको सज़ा दी जाती थी. सारे रूल्स जो होते ऑनर को फेवर करते थे, मालिकों को सपोर्ट करते थे, वो उन्हीं से पैसे कमा के बंगलों में रहते थे. वो बेचारे गरीब जो होते थे उनके लिए कुछ ख़ास नहीं होता था, जिसकी वजह से उनको अपना घर छोड़ के माइग्रेशन करना पड़ता है. ये माइग्रेशन हमने देखा ना, लॉकडाउन के इस वक्त में हमने देखा कि कितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होके बड़े शहरों में जाके रहते हैं. इससे पहले हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब लोगों को देखा अपने घर लौटते हुए तो पता चला कि कितने ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं. और माइग्रेशन कभी बाई चॉइस नहीं होता, मजबूरी से होता है. लोगों को जब अपनी जगह पे कमाने का ज़रिया नहीं मिलता है तो वो बाहर की जगहों पे जाते हैं, अच्छी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं, माइग्रेट होते हैं. और इसीलिए डैम्स को नेहरू ने कहा कि ये टेम्पल्स हैं. टेम्पल्स क्यों कहा कि जब एक डैम बनेगा तो बहुत सारे लोग उस पर रोज़गार में लगेंगे, बहुत सारे लोगों की कमाई होगी, बहुत सारे लोगों की बेरोज़गारी दूर होगी. जिस एरिया में डैम बनेगा वो एरिया के ही मज़दूर काम करेंगे तो उनकी जो बेरोज़गारी की परेशानियाँ वो दूर होगी. अगर आप यूपी में रहते हैं और यूपी में ढेर सारी फैक्ट्रीज लगती है, ढेर सारी कंपनियाँ अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो ऑब्वियस है कि यूपी के लोगों को ही ज़्यादा रोज़गार मिलेगा. बाहर के लोग जब आएंगे तब आएंगे मिलेगा, लेकिन सबसे पहले लोकल लोगों को मिलेगा. तो इस तरह से जो डैम है वो टेम्पल्स कहा नेहरू ने उनको टेम्पल्स कहा कि दे आर टेम्पल्स, डैम्स आर द टेम्पल्स. इसीलिए
और माइग्रेशन होने की जो बहुत सारी वजह हैं, उसमें से सबसे बड़ी वजह यही है कि हर कोई हर काम छोटी जगहों पे नहीं कर पाता, लेकिन बड़े शहर में कोई भी इंसान कोई भी काम करने के लिए फ्री होता है। उससे कोई कहीं भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, सिर्फ उसके काम की काबिलियत देखी जाती है। एक बड़े से बड़ा आदमी भी एक थैला झोला उठा के चल सकता है, काम कर सकता है। अगर उसको कोई काम नहीं मिल रहा है तो ये सब छोटे जगहों पे नहीं हो सकता है। वहाँ पे कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी की परवाह नहीं करता, किसी को मुँह नहीं छिपाना होता है, किसी से भाग के नहीं जाना होता है कि फ़ला देख लेंगे तो मेरा क्या होगा, फ़ला देख लेंगे तो मेरा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों की सहूलियत होने की वजह से लोग ज़्यादातर माइग्रेट होकर बड़े शहरों में जाते हैं। और सबसे जो बड़ी वजह यही होती है कि जब हमारे घर में हमारी जगह पे काम की फैसिलिटी नहीं होगी तो हम जाएंगे, और हम जाएंगे तो उसके साथ बहुत सारी वजह भी बनेंगी। तो ये आपका चैप्टर था स्ट्रक्चर चेंज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड डू द क्वेश्चन आंसर एंड स्पेशली द एक्टिविटी. आई विल चेक योर ऑल एक्टिविटीज़. Whatever you have studied the chapters, you have to send one by one each chapter's activity to me. I will check each activity. After my video, if you feel that I need to include something in my video, so you can share with me. I will try my level best to provide you everything what I can do for you. Till then, thank you very much, my dear children. Study well, take care of yourself, stay at home. Thank you very much.